once, when some of his students and friends wanted to celebrate his birthday, he humbly said, "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th September is observed as Teachers' Day." This novel thought gave India the tradition of honoring teachers every year on this day. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was born on 5th September in 1888 in a small village, Tirikalu in Tamil Nadu. He belonged to a simple Brahmin family where resources were limited, but his determination to study was limitless. At the age of 17, he married to Shivakam and had 6 children, 5 daughters and 1 son. His son Gopal Radhakrishnan later became a notable historian. Despite financial struggles, he excelled in academics and earned a scholarship to continue his studies. His brilliance led him to become a professor of philosophy at Madras Presidency College and later at Calcutta University. His lectures and writings made Indian philosophy known across the world. He once said, "True teachers are those who help us think for ourselves." This shows his belief that a teacher role is to ignite independent thinking in students. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan journey did not stop in classrooms. He represented India at various international forums, served as the Vice Chancellor of our parent university, Banaras Hindu University, succeeding demise of Madan Mohan Malviya ji, and later became the first Vice President of India in 1952. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the first Indian to get Bharat Ratna Award in 1954. He then in 1962 became the second President of India. Yet, even after reaching the highest office in the country, he always remained a teacher at heart. His journey from a simple boy in a small town to the President of India teaches us that education, hard work and humility can take us to the greatest height. It was during this year that his vision of education, culture and morality guided India on the right path. As he once said, "A little joy of happiness is possible only on the basis of knowledge."
चीकू भाई तू पता कैसी है? ए मेरी सीट पे कोई नहीं बैठेगा। अरे मेरे में जो भाई मैं इस साइड बैठूंगी। शिट यार, फर्स्ट बेंच पे बैठना पड़ेगा। और बता क्या किया छुट्टियों में? घर में मजे किए। आओ भाई तुम भी आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नहीं कैसे हो? तुम्हें मैं आंसर नहीं देती। नाम पूछ रही थी, छोटा भी कहाँ है? हम जैसी पिछली पीढ़ी से कई मायनों में आगे हैं। हम इंटरनेट, गेमिंग, मोबाइल और एआई के साथ बड़े हुए हैं। हमें जानकारी पाने के लिए गूगल और यूट्यूब ज्यादा आसान लगते हैं किताबों में खोजने से। We are digital natives। अरे यार, मैम आने में इतना लेट कर रही हो, बताओ। वही तो मैम ही नहीं आई अभी। टाइम हो गया है ना? हाँ, आने की चलो चलो चलो। ओह मैम आ गई। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाओ बच्चों। थैंक यू मैम। बच्चों आज हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे। मैम अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम सब कहाँ होते? बहुत अच्छा प्रश्न कोमल। हम सब अंतरिक्ष में उड़ रहे होते। ओह, तो हमारा होमवर्क भी उड़ जाता ना। हाँ तुम्हारी कॉपी भी समझ आ रहा है मुझे। तो कितनी पढ़ाई हो रही है घर पर? मैम अगर गुरुत्वाकर्षण बल इतना ही जरूरी है तो फिर पतंग कैसे उड़ जाती है? क्योंकि हवा उसे ऊपर ले जाती है। हाँ अच्छा, तो हवा गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। मैम अगर मैं कूदकर हवा में ही रह जाऊं तो क्या आप मेरी अनुपस्थिति में अटेंडेंस लगा देंगी? वाह 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 वाह, तब मेरा जवाब होगा अंजलि सुधांशु शुक्ला की तरह अंतरिक्ष यात्री बन गई है। मैडम, हाँ एगो हमारा सवाल बा, पूछी। हाँ पूछो। न्यूटन के सिरवा पर सेब ही काहे गिरल, आम काहे नहीं? क्योंकि न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, आम के नहीं। अगर उ तरबूज के पेड़ के नीचे बैठल रहा तो तब अरे भाई बदमाशी मत करो, मत करो। हमारा हाल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि क्रिकेट में इंडिया का लास्ट ओवर था। कोई नहीं आउटकम कर सकता है। अरे भाई तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा लिखो और विज्ञान की किताब निकालो, समय बहुत हो गया है। ओहो मैम, आप समझती नहीं है। अच्छा। इस बुक 400 पन्ने की है और रील 40 सेकंड की। बताइए किसे चुने? तो फिर क्या किताबों से डरोगे तो जिंदगी की परीक्षा कैसे पास करोगे? मैम YouTube से पढ़ूं तो समझ नहीं आता, चैट जीपीटी से लिखूं तो पकड़ी जाती हूँ, किताबें खोलूं तो नींद आ जाती है और रील्स स्क्रॉल करो तो रातें कट जाती हैं। ज्ञान की दुनिया में आज कम आसान है। ज्ञान की दुनिया में आज हम आसान है। YouTube, चैट जीपीटी, इंस्टा सब दावा कर रहे हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। आइए देखें कि असली बादशाह कौन निकलेगा। एक नंबर तुझे कंबर शेकी शेकी है किती सुंदर तुझे डिंपल ते पाहिजे ते गिफ्ट एक नंबर तुझे कंबर शेकी शेकी है किती सुंदर तुझे डिंपल ते पाहिजे ते गिफ्ट। अरे भाई ये मेरी क्लास में क्या अनर्थ हो रहा है? सभी अपने अपने स्थान पर बैठिए। हेलो जयंती। हेलो, पहचाना मुझे? हाँ
MCQ, or you need a lesson plan. Ask me anything and get structured reply within a second. Let me reboot. मैं हिंदी में भी उत्तर दे सकता हूँ. अरे वाह भाई, तुम तो बिना किताब खोले ही सारे आंसर दे देते हो. अरे इन लोगों ने तो मुझे मार ही डाला है. ये कौन आ रहा है? ये कौन है भाई? ये तो हमारी किताब दीदी है. हाँ, किताब दीदी. हाँ बच्चों, मुझे मत भूलो. मैं हूँ तुम्हारी किताब. Slow and steady, but deep and ready. ना मैं सीखती हूँ, ना गाना सुनाती हूँ, पर मेरे पन्नों में सदियों का अनुभव है. वो गहराई है जो किसी शॉर्टकट में नहीं. तुमने देखा है? आजकल किसके पास है इन्हें पढ़ने का? हाँ, इसके प्रोजेक्ट की लोडिंग स्पीड बहुत स्लो है. सही बात है. नहीं भाई, सच तो ये है, मैं भी किताब से ही सीखकर जवाब देता हूँ. हाँ बच्चों, ये सब मेरी ही संतान है. ये सब मेरी संतान है. मेरे ही अंश हैं. यूट्यूब हाजिर हो. ये यूट्यूब मेरे ही चैनल से वीडियो बनाता है. इंस्टाग्राम ये मेरे ही अंशों को काटकर शॉर्ट में दिखाती है. चैट जीपीटी आप भी आइए. और ये चैट जीपीटी मेरे ही शब्दों से उत्तर देता है. अगर मैं ना रहूं तो ये सब जीरो हो जाएंगे. जीरो. तो देख, इंस्टा और यूट्यूब चमकदार है, पर चैट जीपीटी समझदार है. और किताब सब पर भारी है. इसके पन्ने भले ही पुराने हों, पर ज्ञान कभी आउटडेटेड नहीं होता. मैम, सच्चाई तो ये है कि हमें दोनों ही चाहिए. किताबों की डेप्थ एंड रील्स की स्पीड. हाँ मैम, रील्स हमारी स्पीड है, यूट्यूब हमारी वैरायटी है, चैट जीपीटी हमारी क्लैरिटी है, और आज हमने मान लिया कि बुक्स हमारी ऑथेंटिसिटी है. तो तय हुआ, पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन समझने के लिए भी होगी. सही बात है बच्चों. अब हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा एक नए तरीके से सीखेंगे. इसके लिए मैं एक प्रयास करूंगी. इज्जत दाना बिज्जत दाना दाने ऊपर दाना. इज्जत दाना, अरे गाओ. इज्जत दाना बिज्जत दाना दाने ऊपर दाना. इज्जत दाना ऊपर दूध नीचे आए, धरती माँ भाव फैलाए. इज्जत दाना ऊपर दूध नीचे आए, धरती माँ भाव फैलाए. इज्जत दाना सूरज पीछे कहता रहे, धरती पीछे हम बेचारे. सूरज पीछे कहता रहे, धरती पीछे हम बेचारे. चांद बना धरती की डोरी, समझो ये विज्ञान की गोरी. इज्जत दाना चांद बना धरती की डोरी, समझो ये विज्ञान की गोरी. इज्जत दाना. क्या क्या मैम? अरे वही जो अभी पढ़ा था. अच्छा, गुरुत्वाकर्षण. हाँ. अरे वाह मैम, आपने गुरुत्वाकर्षण की कितनी अच्छी परिभाषा बताई. क्यों ना हम भी इस गाने पर एक रील बनाएं और इस परिभाषा को वायरल करें. हाँ इज्जत दाना बिज्जत दाना दाने ऊपर दाना. इज्जत दाना बिज्जत दाना दाने ऊपर दाना. इज्जत दाना. तो आपने देखा कि ये संवाद हमें बताता है कि नई पीढ़ी जेन ज़ी
केवल आदेश मानने वाली नहीं बल्कि सवाल करने वाली है। ये युवा कभी किताबों की गहराइयों को छू जाते हैं, कभी स्क्रीन की चमक में खो जाते हैं। वे आजादी चाहते हैं, तकनीक को अपना साथी बना चुके हैं और अपनी दुनिया अपनी शर्तों पर